नमस्कार, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत है। हमारे भारत में कई महान लेखक कवि हुए जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज को, देश को जागृत किया। ऐसे ही एक लेखक जिन्होंने मध्यम वर्गीय, किसान, मजदूर, अमीर, गरीब, अबला स्त्री की समस्याओं को उन्होंने स्वयं महसूस किया, उनकी संवेदनाओं को समझा, फिर इतनी सहजता से शब्दों में ढाल दिया कि पढ़ने वाले को सब कुछ अपनी बीती सी लगने लगी। परत दर परत समस्याओं को इस तरह उधेड़ना कि जवाब खुद मिल जाए। दूसरों की गलतियों को एहसास इतनी संजीदगी से कराना कि वह चाहते हुए भी दोबारा गलती ना करे। ये लेखक, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मुंशी प्रेमचंद, कहानियों के सम्राट और प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। इनको एक गौरव स्थान प्राप्त है। उनकी रचनाओं को विश्व साहित्य जगत में सराहा गया है, एक सम्मान मिला है। तो आइए आज हम उनकी एक प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा सुनते हैं। मेरा ये एक छोटा सा प्रयत्न और आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। कहानी में जाने से पहले मैं अपने तेलुगु प्रेक्षकों को इसे संक्षेप में तेलुगु में सुनाऊंगी ताकि वो इस कहानी का पूरा आनंद ले सके। आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिए, सिर्फ 2 मिनट। చలో హిందీ సీఖే ఛానల్లో హిందీ నేర్చుకోవడంతో పాటు ప్రముఖ రచయితలు, కవుల గురించి, వారి ప్రసిద్ధ రచనల గురించి మీతో పంచుకోవాలనే సంకల్పంతో నేడు హిందీ రచనా ప్రపంచంలో అగ్రతాంబూలం అందుకున్న విశ్వవిఖ్యాత మున్షీ ప్రేమ్చంద్ గారి విచరిత కథతో ప్రారంభిస్తున్నాం. మున్షీ ప్రేమ్చంద్ ఆనాటి ఆర్థిక, రాజకీయ, సామాజిక అంశాలను తన రచనలో అత్యంత సరళంగా వివరించడాన్ని మనం చూస్తాం. ఆయన రచనలు నాటి పరిస్థితులకే కాకుండా నేటి పరిస్థితులకు కూడా అద్దం పడుతూ ఉంటాయి. దరోగా ఈ కథలో ప్రముఖమైన క్యారెక్టర్ మున్షీ వంశీధర్. ఉప్పు విభాగంలో దరోగాగా పని చేస్తున్నాడు. ఆ రోజుల్లో ఉప్పు విభాగాన్ని కొత్తగా తెరిచారు. ప్రకృతి సిద్ధమైన ఉప్పుని అమ్మటాన్ని నిషేధించినప్పుడు దాన్ని దొంగతనంగా వ్యాపారస్తులు వ్యాపారం చేయటం మొదలుపెట్టారు. ఆ విభాగంలో ఉన్నవారికి పండగే పండగ, లంచాలు చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. అయితే ఉద్యోగం వేటలోకి వెళ్తున్నప్పుడు వంశీధర్ వాళ్ళ ముసలి నాన్న అతనికి చెప్పింది ఏంటంటే, ఉద్యోగం ఏదైనా చెయ్యి, దానిలో హోదా ముఖ్యమైనది కాదు, దాని మీద వచ్చే పై ఆదాయం ఎంత ఉంటుందో దాన్ని బట్టి నువ్వు ఉద్యోగం చెయ్యి అని ఆయన చెప్పి ఆశీర్వాదించారు. అదృష్టం కొద్దీ వంశీధర్కి ఉప్పు విభాగంలో దరోగాగా ఉద్యోగం వచ్చింది. చాలా పవర్ఫుల్ అయిన పోస్ట్. అతను ఆ పోస్ట్లో జాయిన్ అయ్యి 6 నెలలే అయింది. అతని పనితనం, అతని మంచితనంతో అందరూ అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్లందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని పొందాడు. అందరూ వంశీధర్ని చాలా పొగిడేవారు. అలా ఉండగా ఒకరోజు శీతాకాలం రాత్రిపూట యమునా నది దగ్గర ఏవో బళ్ళు సౌండ్స్ వస్తే ఇతను పరిగెత్తుకుంటూ అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడ చూసింది ఏంటంటే, కొన్ని బళ్ళు ఉప్పు బస్తాలతో అవి ఆ నది ఒడ్డు దాటుతున్నాయి. అతను వెంటనే వాళ్ళని పట్టుకొని ఎవరు అని అడిగినప్పుడు దానిలో అది పండిత్ అలోపీదీన్, సెకండ్
క్యారెక్టర్, ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్. ఆయన ఆ ఊరు జమీందారు, చాలా పెద్ద వ్యాపారస్తుడు, ఎన్నో లక్షల్లో వ్యాపారం ఆయనది ఉన్నది. అతని బళ్ళని పట్టుకునేటప్పటికీ అతను డబ్బులిచ్చి, లంచం ఇచ్చి 1000 రూపాయల నుంచి స్టార్ట్ చేసి 40,000 దాకా ఇస్తానని, నన్ను పట్టుకుంటే నా పరువు ప్రతిష్టలు సంగతి ఉన్నది అని చెప్పినా కూడా వంశీధర అస్సలు ఒప్పుకోలేదు. అతన్ని అరెస్ట్ చేయటం, మర్నాడు కోర్టులో హాజరుపరచటం అనేది జరిగింది. కానీ అక్కడ ఉన్న చపరాసి, చౌకీదారు, లాయర్లు, జడ్జి అందరూ పండిత్ అలోపోదీన్ దగ్గర డబ్బు తీసుకున్న వాళ్లే కాబట్టి జడ్జిమెంట్ అలోపోదీన్ వైపే వచ్చింది. అతన్ని ఈ కేసులో ఏమీ లేదు, అనవసరంగా ఇది ఇలా చేశారు అని అతన్ని వదిలేయటం, వంశీధర్ని వార్నింగ్ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. దీని కారణంగా వంశీధర్కి ఉద్యోగం పోతుంది. ఇంటికి వస్తే తల్లి, తండ్రి, భార్య మాటలు పడవలసి వస్తుంది. కానీ 1 వారం తిరిగే లోపలే పండిత్ అలోపోదీన్ రథం వచ్చి వీళ్ళ గుమ్మం దగ్గర ఆగుతుంది. ఆగాక ఏం జరుగుతుందో అనేది మనం లాస్ట్లో క్లైమాక్స్ విందాం. దీని ముందర ప్రేమ్చంద్ ద్వారా రాసిన కథని మనం హిందీలో చదివి కూడా ఆనందిస్తాం. जब नमक का एक नया विभाग बना तो मुंशी वंशीधर नमक के दरोगा बने. नमक उस समय जो प्रकृति प्रदत्त था उसका व्यापार निषेध जब किया गया तो नमक का एक दफ्तर बनाया गया जिसके कि दरोगा बने वंशीधर. इस कहानी के मुख्य पात्र वंशीधर हैं. उनके बूढ़े पिताजी अनुभवी पुरुष थे. उन्होंने बेटे को घर की दुर्दशा, ऋण का बोझ और लड़कियों की शादी आदि की याद दिलाते हुए कहा, नौकरी में ओहदे की ओर मत ध्यान देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो. पै आदाయం ఉండే ఉద్యోగాన్ని లో జాయిన్ అయ్యమని తండ్రి సలహా ఇస్తాడు కొడుక్కి. ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है. इस उपदेश के साथ उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया. पिता की बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े. वंशीधर को यहाँ आए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे. इस थोड़े से समय में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था. अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे. नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व जमुना नदी बहती थी और उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था. जाड़े का दिन और रात के समय मुंशी मीठी नींद में सो रहे थे कि अचानक आंखें खुली. नदी की प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और कोलाहल सुनाई पड़ी. इतनी रात गाड़ियां पार क्यों जाती हैं? कुछ गोलमाल है सोचकर तुरंत उठे, वर्दी पहनी और तमचा जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर जा पहुँचे. गाड़ियों की लंबी कतार को पुल पार देख डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? एक ने धीमी सी आवाज़ में कहा, पंडित अलोपीदीन की, दातागंज के. वंशीधर चौंके. पंडित अलोपोदीन इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे. लाखों रुपए का लेन देन था. छोटे बड़े सभी उनके ऋणी थे. लंबा चौड़ा व्यापार था.
अंग्रेज अफसर भी इनके इलाके में शिकार करने आते तो मेहमान बन जाते थे। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? जवाब मिला, कानपुर। इसमें क्या है? पूछने पर चारों ओर सन्नाटा छा गया। दरोगा का संदेह बढ़ा। वे स्वयं घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। नमक के ढेले थे। गाड़ी वालों ने घबराकर पंडित अलोपोदीन को जगाया और कहा कि दरोगा ने गाड़ियों को रोक दिया है। पंडित अलोपोदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। देखिए यहाँ पर प्रेमचंद की जो भाषा है, जो उनके पंक्तियाँ हैं, उनको देखकर, उनको पढ़कर जो आनंद आता है शायद किसी में नहीं आता होगा। पंडित अलोपोदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार तो क्या को कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी ही जी का राज्य है। उनका कहना ये यथार्थ भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वो जैसा चाहती है नचाती है। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं, और बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए और फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए ऐसा हमसे कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई हैं? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपोदीन हंसते हुए बोले, हम किसी सरकारी हुक्म को नहीं जानते। आप ही मेरे सरकार हैं और हमारा और आपका मामला तो घर का है। आपने व्यर्थ में ही कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और देवता को भेंट ना चढ़ावें। मैं तो आपकी ही सेवा में स्वयं आ रहा था। लेकिन वंशीधर को ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय मेरी हिरासत में हैं। आपके कायदे के अनुसार चालान होगा और जमादार बदलू सिंह को हिरासत में लेने का हुक्म देते हैं। पंडित अलोपोदीन स्तंभित हो गए। पंडित जी के जीवन में ये पहला अवसर था। ऐसी कठिन बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। बहुत ही दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। वंशीधर को कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। पंडित जी ने जिस सहारे को चट्टान समझा था, कौन सा सहारा? धन का सहारा को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों से नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। उन्हें धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। किन दोनों शक्तियों में? धर्म और धन। धर्म से आशय है जो हम काम करते हैं, जो हम नौकरी करते हैं, उसको ईमानदारी से निभाना ही धर्म है। तो धर्म और धन, इन दो शक्तियों में संग्राम शुरू होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण शुरू कर दिए, यानी वो उन्हें धन का लालच देने लगे। 1000 से उन्होंने शुरू किया, 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक नौबत पहुंची और आखिर में 40,000 तक देने को वो तैयार हो गए। लेकिन वंशीधर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बदलू सिंह से पंडित को हिरासत में ले लेने को कहा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए, बालक
और वृद्ध सबके मुंह में यही सुनाई पड़ रहा था। जिसे देखिए पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी करना शुरू कर दिया। निंदा की बौछारें शुरू हो गईं, मानो संसार में अब पापी से पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। दूसरे दिन जब पंडित अलोपोदीन लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। पंडित जी इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, वकील, मुख्तार, चपरासी, चौकीदार सभी उनके गुलाम थे। सभी लोग विस्मित थे, इसलिए नहीं कि अलोपोदीन ने ऐसा कर्म क्यों किया, बल्कि इसके लिए कि असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता होने के बाद भी वो कानून के पंजे में कैसे आए। बड़ी तत्परता से आक्रमण को रोकने निमित्त वकीलों की सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य के सिवा कोई बल ना था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र। गवाह थे, विटनेस थे, लेकिन लोभ से डांवाडोल, वो भी धन में बिक गए थे। न्याय का दरबार था, परंतु कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपोदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे बड़े आदमी थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते। वकीलों ने जब ये फैसला सुना तो उछल पड़े। स्वजनों बांधवों ने रुपयों की लूट मचा दी। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। मुकदमे में सफल होकर भी पंडित अलोपोदीन ने खेदजनक विचित्र अनुभव प्राप्त किया। यहाँ पर देखिए कि उन्हें एक विचित्र सा लगा। उन्होंने गर्व नहीं महसूस किया। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे, एक भी सच्चे और आदर के पात्र नहीं रहे। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया तो उसका उसे मूल्य चुकाना पड़ा। एक सप्ताह बीता कि उनकी मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। घर पहुंचे तो पिताजी का क्रोध और उनकी कठिन बातें सुननी पड़ी। वृद्ध माता को दुख हुआ कि वो जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा नहीं कर सकेंगी, और पत्नी तो कई दिनों तक उनसे सीधे मुंह। इस तरह एक सप्ताह बीत जाने के बाद एक संध्या समय बूढ़े पिताजी बैठे राम नाम की जपमाला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका और उसमें पंडित अलोपोदीन उतरे। बूढ़े पिताजी उनकी आगवानी के लिए दौड़े, प्रणाम कर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। उनकी प्रशंसा और बेटे को डांटना और उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। लेकिन अलोपोदीन ने कुल तिलक और धर्मपरायण मनुष्य की प्रशंसा की और वंशीधर से कहा, इसे खुशामद ना समझिए। उस रात आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीरों और रईसों को देखे हैं,
कई उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, लेकिन मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ विनती करूं। और अलोपोदीन ने बड़े विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी होगी। अलोपोदीन ने स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखा और कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। वो मुंशी वंशीधर ने कागज को पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि पंडित अलोपोदीन ने उनकी अपनी सारी जायदाद का एक स्थायी मैनेजर नियुक्त किया है। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त। मुंशी जी कंपित स्वर में बोले, मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपोदीन ने हंसकर कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। और अलोपोदीन ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों का महत्व के परिचय को मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और हस्ताक्षर कीजिए। वंशीधर की आंखें डबडबा गईं। पंडित जी को श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते हुए कांपते हुए आंखों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अलोपोदीन खुश होकर उन्हें अपने गले लगा लिया। ఇదండి కథ। కోర్టులో ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం వంశీధర్ ఓడిపోయాడు, ఉద్యోగం కోల్పోయాడు। కానీ పండిత్ అలోపోదీన్ దృష్టిలో అతనే గెలిచాడు। అతని మీద గౌరవం పెరిగింది। అందుకే వారం రోజుల్లోనే అతని గుమ్మం ముందరికి వచ్చి తనకు ఉన్న యావత్ ఆస్తికి మేనేజర్గా అపాయింట్ చేసి మంచి జీతం, బంగ్లా, నౌకర్ చాకర్లు అన్నిటినీ ఇచ్చాడు। సో ఎప్పుడైనా నీతి నిజాయితీకే గెలుపు అనేదే ఈ కథకి సారాంశం। ये एक कहानी नहीं, एक सफल जीवन जीने की सीख है जो इस समय इतनी ही सच है जो उस समय थी। आज हमें ऐसे अलोपोदीन की आवश्यकता है जो अच्छाई को, सच्चाई को, ईमानदारी को परखने की समझ रखता हो। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।